So, very nice to see everyone here. Um, I think as we continue to take Lord Ram's name, it would, as always, grow in popularity and encourage more people to join in. And today we will start with understanding Ramcharitmanas a little bit and also the background of this. Yeah, take it easy, no need to take notes. I won't question you on this. This class is easy, no need to take notes. If there is something that is a little difficult, I'll ask a question, but not really. So, mostly a day of stories. Now, Ramcharitmanas is a story of Lord Ram written by Tulsidas. Tulsidas ji was born in the 15th, 16th century. 15 something to 16 something. And he wanted, or his birth was also very interesting. Do you know anything about his birth? Anybody knows anything about it? Obviously we don't. So his birth was also very interesting. It is said that he was born uh, on, I think, 11th of August or something, 16 something. And when he was born, it is said that it took him 12 months to be born. And जब वो पैदा हुए तो बोला जाता है कि उनके मुंह में 32 दांत थे, 32 teeth. He was born with 32 teeth, and the first thing he said was Ram. And he was as big, grown up, when he was born as a 5-year-old child. So some interesting anecdotal uh, thoughts around Tulsidas ji. Tulsidas ji was born around 11th of August, is number 2, if that's of any reference or context. Also, it is indicative that number 2s can be great devotees. Hmm. तो काफी खामियां है, मैं काफी क्रिटिसाइज करती हूँ 2 नंबर को, पर ऐसा नहीं है. They can नमस्ते be जी। Namaste. They can be great devotees. चंद्रमा का नंबर 2 है, ही इज अ ग्रेट डिवोटी. शिव जी का नंबर हम 2 से एसोसिएट करते हैं, ही इज अ ग्रेट डिवोटी. And even in the recent past, our history, Tulsidas ji was also number 2, 11th August. So ये कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो उन्होंने पहला शब्द बोला राम, और 12 महीने के बाद वो पैदा हुए, और 12 महीने के बाद पैदा होने के साथ-साथ when he was born, he was 5, like very grown up looking child. But when he was born, there was some inauspicious um, thing in his chart which was not very good for his parents. Now there are sometimes हमें भी पता है कि कभी-कभी बच्चा पैदा होता है तो कभी-कभी पिताजी मुंह नहीं देखते या कुछ ऐसा कभी चार्ट में रहता है. पहले ज़माने में, at least in the 1600s, this knowledge was much better known and understood and by common people. In fact, he was born into a Brahmin family, not that he wasn't a Brahmin. So I suppose Brahmin families had more knowledge about this. So when he was born, not because of this, that he was specially born, but because he had some bad combinations in his chart, his parents left him very early. They left him within 6, 7 weeks of his birth. And they left him in the care of their maid. मुनिया करके उनकी एक मेड हुआ करती थी, उसके साथ तुलसीदास जी रहे, उसने पाला. और
5.5 साल तक उसने पाला और उसके बाद वो भी चली गई। She also passed away because again he had this constellation or whatever combination in his chart. He wasn't going to get the um, uh, blessing of parents. So उसके बाद उस उनकी हालत बहुत खराब हो गई और इस खराब हालत में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और फिर उनको उनके गुरु मिल गए और उनका नाम तब से जब से गुरु ने उनको नाम दिया, तब से उनका नाम तुलसीदास पड़ा। उससे पहले उनका नाम था राम बोला। Because when the child was born, the first thing he said was राम, तो उनका नाम पड़ा था राम बोला। बचपन में उनका नाम राम बोला था। गुरु के मिलने के बाद उनका नाम तुलसीदास पड़ा। So Ramayana is a beautiful epic that was we don't know when it was really written. Sometimes we are told that Kadam Ramayana is the oldest. We, of course, here in the North India believe that Valmiki Ramayana is the oldest. Hard to say. Hard to say whether it is a story or it is the truth. Hard to say. I will not go there. But Ramayana has, I will say, the oldest version that we believe existed was the version of Lord Ram, written by Maharishi Valmiki as Ramayana. Hmm. Now, again, this epic text written by Maharishi Valmiki was maybe translated or maybe transcribed at the same time by many different authors. So, Assam ki Ramayana alag hai, केरला की रामायण अलग है, तमिलनाडु में रामायण अलग है, अलग-अलग रामायण का अलग-अलग नाम है, काफ़ी जला भी दी गई because of the Mughal rule and then the British rule. So a lot of destruction of literature. But फिर भी जो बची हैं, उनमें से ये है वाल्मीकि रामायण, कदम रामायण एंड तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस। या तो काफ़ी चीज़ें तुलसीदास जी ने इट इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसकी एक ना कई बार लोग ट्रांसलेशन लिखते हैं लाइक हम लोग अगर देखते हैं कि महाभारत का किसी ने ट्रांसलेशन लिखा है या अम, शिव पुराण का किसी ने ट्रांसलेशन लोग ट्रांसलेशन लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मगर रामचरितमानस के बारे में ऐसा बोला जाता है ये ट्रांसलेशन नहीं है। और जब हम लोग मैच भी करते हैं संस्कृत से, ये कोई अवधि में इसका संस्कृत से ट्रांसलेशन नहीं है। इसका बिगिनिंग ही बिल्कुल अलग है। इट इज़ एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। बिगिनिंग कैसे अलग है? वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हुँ, जैसे हम लोग हनुमान जयंती पे सुंदरकांड का पाठ करते हैं। एक सुंदर का कांड का पाठ करने में 1 घंटा मम्मा जो प्रैक्टिस हो गया तो 40 मिनट में कर लेते हैं। मगर अगर प्रैक्टिस नहीं है तो घंटा भर में कोई भी कर सकता है। Even if you start reading, it will take you 1 hour 15 minutes. You'll be able to read सुंदरकांड, है ना? बट जब वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड हम करते हैं, तो उसमें कम से कम 5 घंटा लगता है। 5 to that is with a person who's doing it well and it can take up to 8 hours. Right. So you can see the spans is very big. He's not paraphrased the story and he's also not translated the story. There are many anecdotes that are very different in the Ramcharitmanas as opposed to Valmiki Ramayana. Yeah. Now,
Valmiki Ramayana was written by Maharishi Valmiki as the story of Lord Ram. Ramcharitramanas is written by Tulsidas ji as the story that was told to Ma Parvati by Lord Shiva. Yeah. एक बार भगवान साधना कर रहे थे, तो माँ ने पूछा, आप भगवान हैं, आप किसकी साधना करते हैं? Who do you meditate on? तो भगवान ने बोला, राम जी की साधना करता हूँ। तो उन्हें राम कौन है? तो ये क्वेश्चन जब भगवान शिव जी ने आंसर किया, ये राम जी कौन है, और उनकी पूरी कहानी सुनाई, क्योंकि कुछ चीजों पे देवी को डाउट हुआ, तो वो एक अलग कहानी है। उन्होंने सीता माँ का रूप धरा, एंड वी डोंट वांट टू गो देयर, बट रामचरितमानस is said to be the story that was told to to the goddess Parvati by Lord Shiva. ये कहानी देवी माँ को शिव जी ने सुनाई और जस्टिफाई की, और ये कहानी, जो पूरी कहानी है, पूरी की पूरी as it is, was downloaded in तुलसीदास's head. जब वो पैदा हुए तो कहानी लेके पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि कहानी हमेशा उनके साथ थी। जब पैदा हुए थे तब भी उनके साथ थी, कहानी हमेशा उनके साथ थी। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो वी हैव सम सर्टेन थॉट्स एंड यू नो, not everything we gain from the world, right? There are some essential, what you say, core characteristics, core me. You can't justify why. Maybe later as you grow up you understand this is why you are like this. Like that, Tulsidas ji is supposed to have had this whole story in his head all the time. जब गुरु मिला और उन्होंने साधना शुरू करी, और साधना करने की वजह से उनकी एबिलिटी बढ़ी, तो वो कहानी उनके दिमाग से पेपर पे आई, और पेपर पे आके हम सबके पास पहुंची। So Tulsidas ji not a figment of some like old historic, we don't know 5000 year old, नहीं, अकबर के टाइम में पैदा हुए। That whole era, when we read in our, I don't know, आजकल पढ़ाते हैं, पुलकित ने पढ़ा है बेटा, भक्ति मूवमेंट पढ़ा अपनी हिस्ट्री में? सब खत्म कर दिया है इन कांग्रेस वालों ने। हम लोग जब पढ़ते थे, सचिन तेरे को याद होगा, पीयूष को याद होगा, चीकू को याद होगा, हम लोग पढ़ते थे तब हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीर, ये सारे संतों के बारे में हमने पढ़ा है। या तानिया, was it there when you were growing up? Ji Didi, I remember Bhakti movement being one of the chapters. One Like of the first, chapters, right? So we studied it. वो bhakti movements considered somewhere from 14th century right up to 17th century. My history teacher was horrible, so I didn't really learn history. But I remember bhakti movement. The dates मेरी शायद perfect नहीं होंगी. But these were the big characters of bhakti movement. Kabir, Meera, Chaitanya Mahaprabhu. These were taught. These people were taught, and then at the same time there was Tulsidas. So you can almost imagine 1 or 2 centuries of this beautiful history that we've had, which is very recent, where these people were like really divine incarnate, and the amount of devotion that was effulgent in this period has not been replicated anywhere. Not before that, not after that.
We don't hear it. The only other devotion that we hear of is Narad and Lord Shiva. We don't hear of any other historic devotion. या फिर बीच में आए ध्रुव, उनकी devotion, है ना? पर उससे पहले की और कोई डिवोशन की ऐसे हमने कहानी नहीं सुनी, और अगर होती तो हम सुनते ज़रूर, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन है। The the literary tradition of India is an oral tradition, so everything became a story, a song. So we would have heard about it. If there was something to be heard, we would have heard about it. अमर चित्र कथा तो होती उसके बारे में, but है नहीं। तो ये बड़ा स्पेशल टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में, जहाँ पर यूजुअली इंडिया हैज बीन अ नॉलेज बेस्ड लिटरेरी स्पेस, या साधना बेस्ड लिटरेरी स्पेस। साधना में भी कई तरह की साधना, जैसे योग, कई तरह का योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अम, योग योग, या योगा योग। बट भक्ति योग जो हमने देखा, ये 14 सेंचुरी से 16-17 सेंचुरी तक, वो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल, आई थिंक, गोल्डन पीरियड ऑफ इन इंडियन literary evolution, and also philosophical evolution, because we saw bhakti yoga actually fructify in people. That's my thought. Don't quote me in a history class, huh? That's not what my intention is. But that's my thought. So very beautiful, very beautiful people who showed us the path of bhakti, how we hear the story of Tulsi Das ji, probably afflicted by a grave disease, incurable disease, calling out to Hanumanji and being cured, and writing such a beautiful epic, Ramcharitramanas, which is like, if you start reading it, you can't imagine that somebody could have the words. हम तो छोड़ देते ना कि 5,000 साल पुराना किसी ने लिखा है, तो उनके पास उस समय दिमाग हुआ करता होगा। मगर ये तो 300, 400, 500 साल पुराना ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। चलो आदि शंकराचार्य भी 4th सेंचुरी में हुए थे, बहुत, मतलब उस समय बहुत ज्यादा दिमाग हुआ करता होगा, पर ये तो बिल्कुल अभी ही है। So when you read it, you realize the depth and the complexity of poetry and composition, and it's so beautiful. That's it's amazing, right? Really amazing. So भक्ति मूवमेंट में ही तुलसीदास जी को गिना जाता है। और क्या बताएं आपको रामचरित। So Ramcharitmanas is the conversation between Lord Shiva and Parvati. It is not the story of Ram like told by Maharishi Valmiki. Big differences. And therefore, because it is a, again, कोई भी बात, कोई भी स्कूल में हमने देखा है, कभी-कभी एक ही चीज 2 अलग-अलग टीचर से सुनने से ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, you learn something from a teacher who doesn't understand, just wants to teach you the principle. You may appreciate it because you are smart and you want to be the topper, or you may not appreciate it. But then 100% of the people will appreciate it if a teacher is absolutely crazy about that subject, passionate about that subject, loves the subject. Then you will learn. No matter who you are, whether you are intelligent or you are a dud, you will learn. I had a fantastic mathematics teacher in, I think, 5th standard. I didn't want to disappoint her. She loved her subject so much. वो एक ही साल मेरे मैथ में मार्क्स आए होंगे। No, I'm common people. I wasn't a very great student. But it's interesting. So when the teacher is devoted to the subject, the teaching comes very differently. Does that make sense? When the teacher is completely in love with the subject, is devoted to the subject, wants the subject to be
पॉपुलराइज्ड और अंडरस्टूड, कि इतनी अच्छी चीज है, तुम देखो तो सही, सुनो तो सही, समझो तो सही, नहीं समझ में आया दोबारा समझा देती हूँ, क्योंकि उनको प्यार ही इतना है। तो डिफरेंस ये रहा दोनों रामायण में कि बाकी रामायण रामायण है, राम की कहानी। ये रामायण एक तो तुलसीदास जी ने लिखी है, जिनको राम जी से बहुत प्यार है, और दूसरा कहा जाता है कि लॉर्ड भगवान शिव जी की बोली हुई है, जिनको भी राम जी से बहुत प्यार है। तो इसका कुछ कहने का ढंग ही ऐसा है कि कोई जाने ना जाने, समझ में आए ना आए, प्यार हो जाए। You will understand also, you will learn also, you will appreciate also. अभी भी अगर आप यूपी, मध्य प्रदेश के किसी अम, बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठे तो चौपाइयाँ आपको वो सुनाते रहेंगे, कोई ना कोई कहानी रामचरितमानस की सुनाते रहेंगे। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल कि आप नहीं भी ट्राई करोगे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ, कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, तो भी आंख से पानी बहना लगे, यू विल स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज द orator is so beautiful. The way they see everything is so beautiful. They see beauty in every. अब अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो उसके बारे में जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, तो मैं वो सब बोलूंगी ना जो मुझे अच्छा लगता है। आई एम completely in love, right? So that reflection of that love in this rendition makes it a very beautiful rendition, and it will make everybody fall in love, in spite of the language being a little bit of an obstacle. It'll make everybody fall in love with, because the writer and the writer's inspiration, the source, both are completely in love with the character Ram. Writer Tulsidas ji, and writer saying who's the source, Lord Shiva. तो दोनों जब उनको डिस्क्राइब करते हैं, बालकांड बहुत सुंदर है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बालकांड। तो इस ये वांटेज पॉइंट अलग है, बताने का, कहानी बताने का वांटेज पॉइंट अलग है, जो बोला है उसका दिमाग अलग है, उसके देखने का नजरिया अलग है, इसलिए कहानी बहुत बहुत ज्यादा मीठी, बहुत रसपूर्ण है। हम्म? बाकी अगर आप लोग ने कभी कोई क्लास अटेंड करी हो एनर्जीज की, then you would know that I talk about moksha in the context of only one number. Does anybody remember what number that is? 7. तो 7 नंबर एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, जो कि डिटैचमेंट और मोक्ष दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और हम काफी बार देखते हैं कि ये 7 नंबर बार 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 आता है, जैसे कि गीता में 700 श्लोक होना, है ना? कोई भी चीज जब 7 आती है, तो उसका मोक्ष से और डिटैचमेंट से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो जब रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, तो उसमें लिखे 7 कांड, 7 कांड, और हर कांड के एंड में लिखा ये बोला गया है, अब खुशबू, बोला तो गया है, होगा कि नहीं होगा वो तुम्हारी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लिखा गया है कि कलयुग में सारे पाप हटा के और कलयुग में मोक्ष के लिए आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए। सो ये उसकी एक कैरेक्टर है, 7 नंबर जहां आ जाता है वहां मोक्षदायक चीजें हो जाती हैं। सो
there is a lot that has been written in this Ramcharitmanas, and written or embedded in this Ramcharitmanas, which is done in a fashion like it used to be in the old Sanskrit chants. ना कभी आप लोग सब आदित्य हृदय करते हैं. I'm hoping that everybody is doing. सचिन कर रहा है. Yes. तो आप लोग सब आदित्य हृदय करते हैं. वो लिखा ही है ऐसा कैसे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. एक छोटी सी 15-20 श्लोक की एक पोएम है, पर वो करने से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, you guys are witness to it. So there is embedded phonetics and structure that is there in some of our older. आदित्य हृदय कहाँ से है? वाल्मीकि रामायण से. वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड से. सो वो भी रामायण से. तो ये भी जो रामचरितमानस है, हालांकि ये अवधि में लिखी हुई है. संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी प्योर लैंग्वेज. Sanskrit is considered to be the language of liberation and the language of perfection. But this language that is being used is vernacular, local language. But still, it has been written and encoded in a fashion that recitation here also will cause a lot of redemption, detachment, and ultimate moksha. उसके लिए कितनी इंटेंसिटी से आप कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो वो हो गया ये इसका 7. और क्या, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ऐसा भी बोला जाता है कि जब उनकी नैनी, तुलसीदास जी की उनकी नैनी गुजर गई 5.5 साल की, और between then and when he was taken into tutelage, जब उनका उपनयन संस्कार हुआ, जब वो 7 साल के थे, और उनके गुरु का नाम था नरहरि दास. तो जब तक नरहरि दास जी ने उनको उपनयन संस्कार करके ज्ञान, मतलब वेद नहीं कराया, उससे पहले 5.5 से 7 साल की उम्र तक छोटा सा बच्चा था, क्या करता था, उसके पास कुछ खाने को. तो ऐसा बोला जाता है कि माँ पार्वती उनको रोज खाना खिलाने के लिए ब्राह्मणी के रूप में आती थी. ऐसा बोला जाता है. एनेक्डोटल, इंटरेस्टिंग टू नोट. So, anyways, what else? What else did I miss? तुलसीदास जी यूपी के किसी शहर में पैदा हुए, मगर बड़े जो हुए वो अयोध्या और वाराणसी में उनका ज्यादा टाइम गुजरा. सो वाराणसी में इफ यू गो, देयर इज अ तुलसी घाट. और ऐसा बोला जाता है तुलसी घाट पे जो मंदिर है, उस मंदिर में उनकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, या मे बी ओरिजिनल व्हाटएवर प्रिजर्व्ड मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी रखी. ये रामचरितमानस की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वाराणसी के तुलसी घाट के मंदिर में. और कुछ भी चीजें हैं, पर मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ. ये कहानी है actually about 7 stories that are associated with Ram and this incarnation. पहली स्टोरी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो जय और विजय की है. Does anybody know that story, जय विजय की स्टोरी?
नहीं, किसी को नहीं आती। दीदी कुछ कुछ वेगली पता है, स्टोरी तो नहीं पता, बट आई प्रॉब्ली गेस जय विजय वर द्वारपाल एंड दे वर गिवन शाप टू बी born and as a part of मतलब in and they played a role in रामायण, वो उनका वध करने से उनका शाप मुक्त होना था, इतना ही थोड़ा बहुत पता है। I'll tell you the story. The story goes that there are ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो ब्रह्मा जी ने काफी शुरू में हम लोग नहीं बने, ही ट्राइड सप्तऋषि बने, उससे भी पहले सनक आदि ऋषि बने। सनक आदि ऋषि का मेंशन आता है जो कि हमारा हम लोग करते हैं ना दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जब इसका ओरिजिनल या इसकी स्टोरी मैं कभी सुना हूँ तो उसमें सनकादि ऋषि आते हैं। इनकी कहानी क्या है कि ये जब छोटे बच्चे पैदा हुए तो इन्होंने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी के बच्चे थे, घोर तपस्या की और इनको समझ में आ गया कि अगर ये 5 साल के ऊपर जाएंगे तो इनकी बुद्धि जो है फोकस से हट जाएगी। Yeah. So they prayed to Lord Brahma that they remain pre-puberty. They remain children forever. So there are 5 of them and they are always 5 years old. Hmm. So that they could focus on their sadhana and have pure child's mind and child's curiosity. So the curiosity will finish, knowledge will descend. So this happened. And so ये जो सनकादि ऋषि थे वो ऋषि दिखते तो है नहीं, ये सप्तऋषि से भी पहले थे। जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ तो अलग-अलग भगवान ने ट्राई किया, ब्रह्मा जी ने ट्राई किया, तो इन्होंने तो सन्यास ले लिया 5 साल में, फिर उन्होंने बड़े लोग पैदा किए तो वो सप्तऋषि बन गए, उन्होंने भी सन्यास ले लिया। तो बड़ी मुश्किल से है ये सृष्टि चली है, बहुत सारी इटरेशन उसके बाद ही हम लोगों को ये हम लोग सोचते हैं ना, कोई बाकी क्लास में हम बैठते हैं, ये डिजायर क्यों है, ये ईगो क्यों है, व्हाई वर वी अफ्लिक्टेड विद सो मच, बिकॉज सृष्टि नहीं हो रही थी, सबने सन्यास ले लिया। तो ब्रह्मा जी को ना वो फॉर्मूला चेंज करना पड़ा, डिजायर बढ़ाना पड़ा थोड़ा, तब तो हम लोग गया ना ऐसे माया जाल में फंसे, वरना सब सन्यास ले लेते थे। उन्होंने पहली जो फ्यू क्रिएशंस करी तो उसने सब सन्यास ले लिया, सबको बहुत परमात्मा का बहुत ज्ञान था तो उन्होंने सबने सन्यास लिया, तो इसलिए हम लोग ऐसे एनीवेज। सो सनकादि ऋषि जो थे उनको देखने से पता नहीं चलता था कि वो ऋषि है। सो एक बार वो नारायण को मिलने गए, नारायण को मिलने गए तो जय विजय जो उनके द्वारपाल हैं उन्होंने रोक लिया, बच्चे थोड़ी जा सकते हैं, मतलब कौन हुआ। And so they again child's mind has its advantages and disadvantages. So they got very offended and they cursed कि तुम you're not capable of being guards of Vaikuntha ना, इसके लिए तुम जाओ, थोड़ा समझ के आओ कि तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। तो इस ये पूरा कमोशन सुन के भगवान भी बाहर आए, भगवान को सुनाई पड़ा कि ये क्या हो गया, तो कर्स मिल गया, श्राप मिल गया सनकादि ऋषि को से जय और विजय को। तो जय और विजय तो बहुत बड़े डिवोटीज हैं भगवान के, तो उन्होंने भगवान से माफी मांगी, सनकादि ऋषि से माफी मांगी, बहुत माफी मांगी। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, श्राप तो मिल गया, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, मगर 2 काम कर सकते हैं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। या तो तुम मेरे डिवोटी बन जाओ, डिवोटी बनोगे तो 100 इनकारनेशन में तुम वापस आ जाओ, 100 बार जन्म लो, 100 बार मेरे डिवोटी बनो, 100 बार के बाद तुम वापस आ जाओ यहीं पे। या फिर मुझसे दुश्मनी करो, और दुश्मनी करोगे तो 3 बार में वापस आ जाओ।
क्योंकि दुश्मनी भगवान से दुश्मनी करने कोई आसान काम तो नहीं। कौन करेगा दुश्मनी भगवान से? ये उससे भी बड़ा काम है, भक्ति से भी बड़ा काम है। तो इसलिए ये करोगे तो तुम 3 बार में वापस आ जाओगे। हुँ? तो उन्होंने कहा भगवान हम ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते, अब 3 बार वाला आप वो कर दो। तो वो 3 बार में वापस आने वाला उन्होंने डिसाइड किया। तो उनका जन्म हुआ, पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा और हिरण्यरक्षक के लिए वाराह अवतार हुआ, वाराह भगवान का अवतार। उसके बाद पैदा हुए रावण और कुंभकर्ण, या और उसके बाद पैदा हुए कंस और शकुनी, सॉरी कंस और शिशुपाल। तो भगवान ने अपने हाथ से वध किया 3 इन्कार्नेशन में, तो जय और विजय वापस चले गए। तो इसलिए रामायण बनी, क्योंकि रावण को मारने के लिए भगवान को खुद ही आना पड़ा, रावण और कुंभकर्ण। क्योंकि उन्होंने जय और विजय को बोला था कि मैं वध करूंगा और फिर तुम वापस आ जाओ। या तो 1, 2, 3, 4 अवतार हुए इस कहानी की वजह से। वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम और कृष्ण जी। तो 4 अवतार हुए इसकी वजह से। और एक कहानी है नारद जी की। किसी को पता है नारद जी की कहानी? सो एक बार नारद जी ने घोर तपस्या की। तो ओम किसकी तपस्या करते हैं? भगवान की तपस्या करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कर रहे होंगे। ज्यादा ही हो गई तपस्या, और जब भी ज्यादा तपस्या हो जाती है तो कौन परेशान हो जाते हैं? किसी ने पढ़ी है बचपन में अमर चित्र का? इंद्रदेव। क्या? तो इंद्रदेव परेशान हो गए कि ये ज्यादा ही तपस्या कर ली, कहीं ये स्वर्ग वर्ग नहीं आने वाले, लेने तो नहीं वाले मेरा सारा सिंहासन। तो उन्होंने कामदेव को बोला कि भाई तुम कुछ करो। तो कामदेव ने सोचा कि कुछ तो करता हूँ। तो बहुत सारी अप्सरा भेजी, बसंत ऋतु कर दी। रिमेम्बर द स्टोरी, लॉर्ड शिवा को भी उन्होंने ऐसे ही बहकाया था, याद है ना? जब पार्वती जी से उनको प्यार कराया, तो कामदेव का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, और उसकी वजह से कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था। सो ये कामदेव जी दोबारा शुरू हो गए इंद्र के बोलने पे। अरे राजा है, बोलेगा तो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। नारद मुनि अपनी तपस्या से हटे ही नहीं। तो जब वो बिल्कुल फेल हो गए, तो पहला काम कामदेव ने किया कि पहले तो मैं माफी मांग लूं, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ हादसा हो गया था। सो सबसे पहले वो गिर गए उनके पाँव में कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहीं वो कहानी दोबारा ना दोहराइए कि आप बड़े तपस्वी हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब थोड़े नारद जी थोड़े पहले तो कुछ नहीं सोच रहे थे इसके बारे में। नारायण नारायण का जाप कर रहे थे, नारायण के साथ थे। जब इन्होंने माफी मांगी और ये बोला कि आपने तो शिव जी को भी करा था, फिर शिव जी बहक गए थे और बहक के वो पार्वती माँ से प्यार कर लिए थे, और उसके बाद मेरा भस्म कर दिया उन्होंने मुझे तीसरी आंख खोल के, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। तो जब ये पूरी कहानी उन्होंने बोली, तो नारद जी को सडनली ऐसा लगा कि वो शिव जी से भी ज्यादा सुप्री सुप्रीम है। अब उसके पीछे गूढ़ राज क्या है? राज क्या है कि नारद जी को कुछ नहीं हुआ, शिव जी बह गए।
क्या राज है इसके पीछे? कहानी ऐसी तो नहीं होती। ये नारद जी किसकी भक्ति करते हैं? नारायण की। नारायण। नारायण की। नारायण की पत्नी है माया। तो जो नारायण की भक्ति करेगा उसको माया कैसे छुएगी? नहीं छू सकती, है ना? तो भगवान की वजह से वो बचे हुए थे, मगर ईगो आ गया। ईगो आ गया तो गए शिव जी के पास जाके बोले देखो मैंने तपस्या की और तपस्या करके कुछ भी नहीं हुआ, कामदेव ने पूरा ट्राई कर लिया, माफी मांग के गए मुझसे। भगवान शिव ने बोला कोई बात नहीं, मुझे तो बता दिया, कभी नारायण को मत बताना। मुझे तो बता दिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत महान हो, तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी है, बस नारायण को इसका जिक्र मत करना। तो ऐसे कुछ दिन और निकल गए, नारद जी गए नारायण 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 के पास पहुंचे एक दिन वैकुंठ में और बोले मेरी तपस्या तो बहुत अभी अच्छी हो गई है, मेरा संकल्प बहुत अच्छा हो गया है, मेरा ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा हो गया है नारायण, है ना? क्योंकि कुछ नहीं होता मेरे को, तो कुछ किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज से टेम्पटेशन नहीं होती। कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, तो तान्या कभी कभी बोलती है मुझे खाने से कोई लगाव नहीं है। ऐसा नहीं है लगाव नहीं है, सही खाना मिलेगा तो लगाव हो ही जाए। तो ऐसे ही भगवान ने बोला, वो ये नारद मुनि ऐसे ही थोड़ा सा ब्रैग करने लगे कि मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, उससे कुछ लगाव नहीं है। तो भगवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लगाव नहीं, अच्छी बात है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन था ईगो का, और ईगो अच्छी चीज नहीं है, नारायण की भक्ति में ईगो कैसे रह सकता है? ईगो तो रह ही नहीं सकता। तो भगवान ने देवी को बोला अब आप इनको थोड़ा सा रास्ता दिखाइए। तो देवी ने माया पूरा जाल रचा और नारद मुनि घूमते घूमते, नाम मुझे याद नहीं है, नाम देखती हूँ एक मिनट, कहाँ पहुंचे? एक जगह पहुंचे जहां पर राजा था शील निधि, और शील निधि की बेटी थी विश्व मोहिनी। हम्म, एक राजा के राज्य में पहुंचे जो शील निधि राजा था, और उनकी बेटी थी, पुत्री थी विश्व मोहिनी। और विश्व मोहिनी को देखते ही नारद मुनि, क्योंकि वो मोहिनी थी, माया का रूप थी, नारद मुनि पागल हो गए, तो इससे ही शादी करनी, ये तो इतनी सुंदर है और इसी से शादी करनी है। तो नारद मुनि चाहते तो थे शादी करना, मगर थोड़ा सा उनको लगा कि शायद मे बी नारायण नॉट अप टू डेट, नॉट सो गुड, है ना, थोड़ा मेकओवर करके आता हूँ। तो भगवान नारायण के पास गए, नारायण के पास गए, बोले भगवान मुझे हरिमुख बना दो, मुझे अपना चेहरा दे दो, कुछ देर के लिए अपना चेहरा दे दो, मैं शादी करके अपना चेहरा दे दो। तो भगवान ने उनको बंदर का चेहरा दे दिया, उनको तो पता नहीं था, मैंने दे दिया, तुम जाओ, हो जाएगी शादी तुम्हारी। बंदर का चेहरा लेके वो विश्व मोहिनी से शादी करने उनके स्वयंवर में पहुंचे। सो अब क्या होना था अगर बंदर का चेहरा है तो? विश्व मोहिनी बहुत हंसी कि क्या क्या चेहरा लेके आए हो, तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझसे शादी करोगे? और उसी सभा में, उसी स्वयंवर में नारायण खुद भी थे, तो मोहिनी ने तो नारायण से ही शादी करनी थी। तो नारद मुनि को जब ये समझ में आया कि ये तो नारायण नारायण का फेस तो मेरा फेस होना चाहिए, नारायण का फेस कैसे आ गया यहाँ पे, है ना? तो ये नारायण ने मेरे साथ छल कर दिया, तो बहुत गलत था। और
बहुत सफरिंग है मेरे लिए, मेरे को मेरी पसंद की लड़की नहीं मिल रही है, इतने दिन से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। तो नारद जी ने नारायण को श्राप दिया गुस्से में कि ये जो बंदर का मुंह बना है ना, ऐसे ही लोग तुम्हारी मदद करेंगे और तुम जैसे मैं तड़प रहा हूं ना पत्नी के बिना, तुम भी तड़पोगे। ऑफ कोर्स जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उनको समझ में आया उन्होंने क्या किया, और खैर एनीवेज। तो इसकी वजह से भगवान को वानर सेना मिली, और इसी की वजह से भगवान को वनवास में सीता जी का हरण हुआ और पत्नी वियोग हुआ। क्योंकि कोई भी कर्ज हो तो पूरा तो होता ही है। एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल फॉर एवरीबody टू अंडरस्टैंड। Since I'm a teacher of philosophy, I will bring you back to philosophy. Don't mind that in the classes. It's very important to remember कि कर्म कोई भी कटता नहीं है जब तक पूरा नहीं होता। ऐसा कोई मैजिक नहीं है, भगवान के पास भी मैजिक नहीं है कि एक बार कर्ज आ गया तो उसको ऐसे ही हटा दे। ना जय विजय का कर्ज खत्म हुआ, ना नारायण का कर्ज खत्म हुआ, किसी का कर्ज खत्म नहीं होता। तो हमारे भी जो कर्म है ऐसे खत्म नहीं हो सकते, हमने जीना ही पड़ेगा उनको। जो हमारी हार्डशिप्स हैं खत्म नहीं हो सकती, उनको जीना ही पड़ेगा। एंड उसको अपना धर्म मानना चाहिए, क्योंकि हमने भी कुछ किया जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है। इसको अपना धर्म मानना चाहिए और धर्म मान के पूरा करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी तकलीफ हो। Have a thought, गुड़िया? नहीं नहीं, सॉरी म्यूट हो गया। एक कहानी और है मनु और उनकी पत्नी, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी की, कि उन्होंने बहुत तपस्या करी, सब कुछ छोड़ दिया, तपस्या करी, और तपस्या के बाद उनके पास उनको दर्शन हुए, नारायण के दर्शन हुए। और नारायण के जब दर्शन हुए तो वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो भगवान ने बोला कुछ मांगो, आप कुछ मांगो। तो उनको कुछ मांगने वाली कोई चीज नहीं थी ऐसी। दर्शन हो गए भगवान के, अब कोई क्या मांगे। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये रूप मेरा पुत्र हो जाए। तो ऐसे रूप में आप मेरे पुत्र बन जाए, मैं आपका पिता होने का सुख लेना चाहता हूँ। कौन सारे टाइम आपका पिता होने का सुख लेना चाहता हूँ, भोगना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी से जब पूछा, पत्नी माँ मैं भी आपका माँ होने का सुख लेना चाहती हूँ। Suddenly she followed suit. Well done, कौशल्या, later in life, in a later incarnation. So ऐसे दशरथ और कौशल्या हुए जिनको राम भगवान पिता और माता होने का पिछले जन्म से सुख। सो बहुत सारी कहानियां हैं, मगर जो मेन टेक अवे, आई थिंक वी लीव इट एट दिस। इट्स बीन अ लॉन्ग क्लास, आई स्टॉप टुडे। द मेन टेक अवे इज, कोई भी कहानी ले लो, उसमें एक दो इनकारनेशन पीछे चले जाओ, हर चीज का रीजन समझ में आ जाता है, और वो भोगना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी पाप मिटता नहीं है, पाप होता है, छोटा हो जाता है। लकीर को छोटा करने का तरीका सिर्फ इतना है, बड़ी लकीर लगाओ। बड़ी लकीर लगाने का तरीका सिर्फ इतना है कि साधना करो। जितनी साधना करोगे उतना पाप तो होगा, वो तो पूरा होगा, उसका कोई चारा नहीं है। जो हार्डशिप आपको देखनी है वो तो आप देखोगे ही देखोगे, मगर वो छोटी हो जाएगी। आप
पत्नी वियोग तो ठीक है, पत्नी वियोग के बाद भगवान जीत भी गए, है ना? So whatever is going to happen will happen. There is no way to obliterate bad times or hardships. No way. No way to obliterate it. किसी की लाइफ में कोई कितना भी जाप करे, पाठ करे, पूजा करे, और इनफैक्ट जो ज्यादा हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण परिवार है, उनमें सफरिंग ज्यादा ही होती है, क्योंकि ब्राह्मण परिवारों ने गलतियां भी ज्यादा करी हुई, जबकि उनसे उम्मीद नहीं थी कोई गलती करने की। तो इसलिए सफरिंग पूरी बराबर है। मगर अगर साधना रख करें, राम का नाम जपे, तो तुलसीदास जी भी बीमार हो गए। कोई सफरिंग ले नहीं सकता आपकी, पर साधना करने से ये छोटी हो जाएगी। राम का नाम लीजिए या भगवान का नाम लीजिए, कोई भी लीजिए, तो उससे ये छोटी हो जाएगी। और भी कुछ कहानियां हैं, वो अगली बार, और फिर हम लोग शुरू करेंगे मे बी 2 या 3 क्लासेस के बाद इसका रेसिटेशन, एंड वी विल डू एक एक चौपाई। इसमें संस्कृत की तरह श्लोक नहीं है, इनको चौपाइयां हैं और कुछ दोहे भी हैं। सो चौपाई और दोहे, दोहों से बनी है रामचरितमानस, और इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। So we'll start in a few days, in a few classes, but for now, some stories so that you just understand the background, what happened to Valmiki ji, how did he become Tulsidas, how did Tulsidas become a sannyasi, he actually was a householder, what else happened, we'll talk about next time. All right. Okay, guys, thank you so much. Have a nice day. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you. नमस्ते। Namaste, Raja.